Okay, so in the last class of company law, corporate law that we did, we had started with a bit of understanding about companies, and then we did the types of companies, and I think we had stopped at the difference between private company and public company. Today in this class we will move ahead, and we will start with the types of companies on the basis of ownership, and we will also discuss a few specific type of company, one of them being a one person company, then small companies, then producer companies. So these are the things that we will be going ahead and discussing in today's class. I will just give everybody 1 minute, 1.5 minutes to गेट ऑल देयर बुक्स एंड कॉपीज़, क्योंकि क्लास में थोड़ा बहुत आज भी नोट्स लेना पड़ेगा, इस कारण से कॉपी बुक्स ले लीजिए एंड विल स्टार्ट इन 1 minute. So today's class basically is the class of company law, and will be continuing from the last class. Okay, so let's quickly just go through the topic for today. The first thing that we'll do is the type of company on the basis of ownership. So, on the basis of ownership or control, we can divide the companies into two different types, two or three different types actually. And the first one is a government company. Fine. A government company, basically, as you all can understand from the name itself, is a company where the government owns the maximum amount of stake. Stake means shares, meaning all the decisions are taken by the government. Fine. In such a situation, these companies have a lot of government representatives on their boards. मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं. So this is the government company where government controls all the decisions. Okay, the next one is the multinational company. ठीक है. Multinational company, from the name itself, multinational meaning a company which exists in more than one country. ठीक है. मल्टीपल कंट्रीज में ऐसे कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं. सच आर such type of companies are known as multinational companies. Fine. One of the examples of a multinational company can be Indian multinational company can be Tata. Tata Group exists and runs its business in a lot of countries. टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में बिकती है. सो सच अ कंपनी इज अ मल्टी नेशनल कंपनी. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन अहेड. Now here we will do two different types of
companies based on ownership itself. One of them, this actually explains the relationship. One of them is called a subsidiary company and the other one is called a holding company. So we'll start with holding company. Holding company is a company which owns another company. For example, if Ram is a company and the decisions of Ram company is being taken by say Lakshman company, ठीक है, तो लक्ष्मण कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी, मीनिंग कि राम कंपनी के जितने भी डिसीजंस है, जितना भी मेजर ओनरशिप डिसीजंस हैं जो कि एक शेयर होल्डर्स लेते हैं, वो कौन ले रहा है? वो एक दूसरा कंपनी ले रहा है जिसका नाम है लक्ष्मण कंपनी. तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, सो हियर कम्स द होल्डिंग कंपनी विच इज द लक्ष्मण कंपनी इन दिस एग्जांपल, जो कि एक दूसरे कंपनी को ओन करके उसने रखा हुआ है. इन दिस सेम एग्जांपल द राम कंपनी इज नोन एज द सब्सिडियरी कंपनी, मतलब कि जो कि दूसरे कंपनी के अंडर है. ठीक है. इन रियल लाइफ एग्जांपल यू कैन से TCS इज अ कंपनी विच, या तो TCS छोड़ दो, तो एक इजियर एग्जांपल लेते हैं, व्हाट्सएप इज अ कंपनी विच टुडे इज ओन्ड बाय फेसबुक. ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन द होल्डिंग कंपनी इज फेसबुक whereas the subsidiary company is the WhatsApp. ठीक है. So such a relationship exists in corporate world and this is what that relationship means, holding company and subsidiary company. So this is where we come to the end of types of companies, and we have seen the types of companies based on 4 different parameters. 4 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर हमने कंपनीज को डिवाइड किया था, इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ओनरशिप. सो दिस वाज द लास्ट वन. नाउ वी विल गो ऑन टू अ मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनी विच इज वेरी न्यू. पुराने कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट जो 1956 का था, उसके पहले का था, उसमें ये इस तरीके की कंपनीज के बारे में कुछ नहीं बोला गया था या कोई प्रोविजन नहीं था. ऐसे कंपनीज पुराने कंपनीज एक्ट में हम नहीं बना सकते थे. बट इन द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर अ 1 person कंपनी. नाउ द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि क्या हो सकता है. ये एक ऐसा कंपनी है जहां पे कि ओनरशिप जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है. जनरली अगर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, इफ वी यूज दिस वर्ड कंपनी, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. द डेफिनेशन ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट दिस इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल. In this situation, it is only 1 person which is considered as the group. Fine. So 1 person company is a newly introduced type of company in the Companies Act. ठीक है. It is done. Why? Because a lot of people who want to start business cannot wait for a group. हो सकता है मैं आज कल में बिजनेस कुछ शुरू करना चाहता हूं और एक कंपनी शुरू करना चाहता हूं. जरूरी नहीं है कि मेरे पास और 5 लोग होंगे जो कि मेरे साथ ये कंपनी में रहना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं. तो ये प्रॉब्लम जिससे कि ना आए और एक सिंगल व्यक्ति भी एक कंपनी अपने इच्छा से शुरू कर सके, इस कारण से ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट में लाया गया है. ठीक है. सो टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स हु ऑन देयर ओन आर केपेबल. मतलब कि कोई अगर एंटरप्रेन्योर है और वो अपने बलबूते पे ही कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको अलाउड है, वो शुरू कर सकता है. ठीक है. एंड
allowing them to create a single person economic entities. ये single person economic entity कौन है? This single person economic entity is the one person company that we are talking about. Fine. Okay. Now biggest advantage कि वहां पे एक व्यक्ति लगेगा. Obviously एक व्यक्ति लगेगा तो सारा डिसीजंस जो है वो जल्दी ले सकता है. वो आज चाहे तो कल, अगर उसको लगता है कि नहीं मैं कल शुरू करूंगा, तो वो कल शुरू कर सकता है. लेकिन वहीं अगर 20 लोगों की कंपनी है या 20 लोग मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं, तो 20 लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, 20 लोगों का सहमति लेना पड़ेगा. ठीक है. एंड यहां पे एक बस चीज है जहां दो लोग लगते हैं, विच इज इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के वक्त दो लोग लगते हैं, बाकी हर जगह वन पर्सन ही होता है. ठीक है. एंड ये जो दूसरा पर्सन भी होता है, दिस पर्सन इज ओनली इन अ सपोर्टिंग रोल. दिस पर्सन इज ओनली देयर टू sign some documents or be present in some legal proceedings. Fine. That is it. And maintaining a limited liability, private limited company or a limited liability partnership. Fine. Okay, so this is all about a one person company. Quickly take notes from this slide, and then we'll move ahead. I'll not give you time right now. I'll discuss this particular topics and then you can come back and screenshot. ठीक है, अभी भी screenshot कर सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा यहाँ से. Okay, so we'll move on to the next topic, which is, just hold on a second. Okay, so the next topic is small companies. ठीक है. See, in your syllabus there are four specific types of companies which are mentioned. The first one was one man company, one person company. Second one is small companies. ठीक है. Now what is a small company? यू कैन से कि एक स्मॉल कंपनी क्या है, अपने कॉमन सेंस से आप बोल सकते हैं कि एक स्मॉल कंपनी क्या है, जो बहुत छोटी है, जिसका टर्नओवर बहुत कम है. टर्नओवर मींस सेल्स बहुत कम है, जिसका प्रॉफिट्स बहुत कम है. बट यहाँ पे कंपनीज एक्ट में इस तरीके से काम नहीं होता है. कोई भी लॉ अगर होता है, ठीक है, इफ देयर इज सम एक्ट, देयर यू हैव टू मेंशन एग्जैक्टली what is the meaning of a small company. Okay. So according to the Companies Act in section 2 subsection 85, it is given that a small company other than a public company, ठीक है, पब्लिक कंपनी का मीनिंग अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा है. पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट. ठीक है, जिसके शेयर स्टॉक मार्केट पे बिकते हैं. अदर देन दैट, मतलब कि एक स्मॉल कंपनी इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी. ठीक है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज. मतलब कि इनका जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज. या तो उनका दो अलग अलग कैटेगरीज यहां पे हैं स्मॉल कंपनीज की, या तो 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, या तो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहां पे दो कैटेगरीज हैं. द फर्स्ट वन, ये देखिए यहां पे और लिखा हुआ है, मीनिंग देयर इज अ क्लास. द फर्स्ट क्लास इज शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज एंड द सेकेंड क्लास इज शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज.
Fine. So this is the first criteria. The second criteria is कि turnover. Turnover means sales. ठीक है. Sales should not exceed 2 crore rupees. ठीक है. This is the first one. ये पहला क्लास के लिए. एंड दूसरे क्लास के लिए shall not exceed 100 crore rupees. Fine. So a small company under the Companies Act is defined as any company other than a public company which, सबसे पहला, does not have a paid up capital of more than 50 lakhs or does not have a capital of more than 10 crores. तो ये पहला और दूसरा कैटेगरी हो गया फर्स्ट पॉइंट में. सेकेंड पॉइंट में टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 crore for category 1 and 100 crore for category 2. Fine. So quickly take a note in your own language about the definition of small companies. यहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, बट दिस इज व्हाट अ प्रॉपर डेफिनेशन इज. फाइन. ओके. सो विल मूव अहेड. एक दो चीजें और देखेंगे, बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे. दो तीन चीजें ही देखेंगे स्मॉल कंपनी के बारे में. फीचर्स ऑफ अ स्मॉल कंपनी क्या है? अब ऑफ ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी. इवन हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा था कि यहां पे लिख दिया है कि अपार्ट एक्सेप्ट फ्रॉम अ पब्लिक कंपनी. यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है अदर देन अ पब्लिक कंपनी. मतलब अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी. Only a private company can be a small company. ठीक है. ओके. होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, चैरिटेबल कंपनी एंड कंपनीज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी. मतलब कि एक होल्डिंग, सब्सिडियरी, चैरिटेबल और स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती. यहां पे स्पेशल एक्ट वाली कंपनी का मीनिंग क्या है? हमने पीछे अभी डिस्कस किया था कि कुछ कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर आधारित होती हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल, गेल, उसके बाद भेल, ये सारी कब बनी? जब गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एक्ट पास किया एंड उसके बेसिस पे ये कंपनीज बनी. इवन आरबीआई. तो ऐसी कंपनीज को स्मॉल कंपनीज हम घोषित नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता. इट्स अगेंस्ट द लॉ. फाइन. ओके. द थर्ड वन इज द स्टेटस ऑफ अ कंपनी एज अ स्मॉल कंपनी मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर. हर साल असेसमेंट होता है. हर साल असेसमेंट होकर एक कंपनी को यह टैग मिलता है कि वो स्मॉल कंपनी है. अच्छा, स्मॉल कंपनी का टैग मिलने से क्यों चाहिए किसी भी कंपनी को स्मॉल कंपनी का टैग? क्योंकि ये टैक्सेशन में और बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस में आगे जाकर बेनिफिट मिलता है एक स्मॉल कंपनी को. क्योंकि स्मॉल कंपनीज जो हैं वो छोटी कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है. ठीक है. मजबूत का मतलब फिनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है. तो इस कारण से गवर्नमेंट जो है उनको थोड़ा छूट देती है, बहुत तरह का बेनिफिट्स देती है. तो इस कारण से एक स्मॉल कंपनी का टैग मिलना बहुत सारी कंपनीज के लिए ज़रूरी है. तो ये सालाना इसका असेसमेंट होता है. 10 द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर
मे स्टैंड विदड्रॉन इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब कि इस साल अगर आपको स्मॉल कंपनीज के अंडर कुछ बेनिफिट मिला है तो अगले साल जरूरी नहीं है कि नहीं मिलेगा, एंड फिर उसके अगले साल हो सकता है फिर से मिलने लग जाए। ठीक है, हो सकता है आप इस साल स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में पड़े आ गए तो इस साल आपको मिलेगा, अगले साल आप उस कैटेगरी में नहीं रहे तो अगले साल नहीं मिलेगा, फिर उसके अगले साल आप आ गए, अगर फिर से स्मॉल कंपनी बन गए तो फिर से मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स 3 फीचर्स काफी है, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का नोट्स ले लीजिएगा, एंड नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, विल सी सम स्पेशल प्रोविजंस एंड एक्सेप्शंस अवेलेबल टू अ स्मॉल कंपनी। मैं जो बेनिफिट्स की बातें कर रहा था अभी, आई टोल्ड यू कि अ स्मॉल कंपनी गेट्स सर्टेन बेनिफिट्स, तो व्हाट आर दीज बेनिफिट्स वी विल क्विकली सी इन ब्रीफ। सो द प्रिविलेजेस और एक्सेप्शंस, ये हेडिंग हो जाएगा आप लोगों का, द बेनिफिट्स, privileges or exemptions available to a small company are, सबसे पहला signing of annual returns। ठीक है, तो ये annual returns फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बड़ी कंपनी है तो उसको ऑडिट करके ऑडिटर से साइन करवाना होगा। ठीक है, बट इन अ सिंगल इन अ स्मॉल कंपनी ये एनुअल रिपोर्ट जो है ये कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है। ठीक है, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई एक डायरेक्टर भी साइन करके जमा कर सकता है, ऑडिटर की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, ऑडिटर क्या होता है हम लोग सेमेस्टर 5-6 में पढ़ेंगे आप लोग। ऑडिटर इज अ पर्सन हु कम्स टू वेरीफाई योर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हम लोग अभी आप लोग 11th-12th अभी बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। ये जितने भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये पीएनएल है, उसके बाद ये ब्रांच अकाउंट के स्टेटमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट, सारे जितने भी अकाउंट्स आप बना रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरीफाइड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय अ पर्सन कॉल्ड द ऑडिटर, एंड ये ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है एक कंपनी को अंडर रूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के रूल के अंडर उसको अपॉइंट करके आपको अपना बुक्स को वेरीफाई करना होता है एंड उसको साइन लेना पड़ता है इस ऑडिटर का। बट वन पर्सन स्मॉल कंपनी में ये साइनिंग जो है ये एक कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है या तो एक डायरेक्टर भी कर सकता है। ठीक है, ओके, अब बोर्ड मीटिंग्स पे आ जाते हैं। बोर्ड मीटिंग्स, अ स्मॉल कंपनी कैन होल्ड ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर, जबकि बाकी कंपनीज का रूल क्या है, 4 मीटिंग्स का रूल है। ठीक है, बाकी कंपनीज को, अगर आप स्मॉल कंपनीज नहीं है तो बाकी कंपनीज को 4 मीटिंग्स अटेंड करना पड़ता है, बट अ स्मॉल कंपनी इज अलाउड टू अटेंड is allowed to arrange only 2 board meetings। फाइन, ओके, मूविंग ऑन। सो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वी नो क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज को फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट का रूल होता है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फॉर स्मॉल कंपनीज। ठीक है, यहां पे स्मॉल कंपनीज को क्या बोला गया है कि आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएंगे जरूर, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है, एंड इट इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट दैट all the companies are supposed to make these financial statements, and there itself it is mentioned
that okay, a small company, a one person company and a dormant company may be allowed to not make the cash flow statements. Fine. Okay, moving on to the next one. Will not see this, rotation of ऑडिटर नहीं देखेंगे, एक इजी वाला देखते हैं. Okay, we'll see this particular point, lesser penalties. ठीक है, स्मॉल कंपनीज भी गलतियां कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल कंपनीज गलतियां करती हैं तो वहां पे जो पेनल्टी उन पे लगता है वो कम होता है. ठीक है, स्मॉलर द company shall be liable to pay a penalty which shall be not more than one half of this penalty specified in this section. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बड़ी कंपनी है, उसको अगर 10 लाख का पेनल्टी लगा है, तो एक स्मॉल कंपनी को उसी जगह इसका 1/4 लगेगा, मतलब डिवाइडेड बाय 4, विच इज 2.5 लाख ओनली. ठीक है, सो दिस इज व्हाट are the benefits of being a small company. That is why a lot of companies want to get into this category. वो लोग अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से बनाते हैं जिससे कि उन्हें स्मॉल कंपनी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि स्मॉल कंपनीज को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. हम लोग कौन से 4 बेनिफिट्स देखेंगे? 1, 2 and 3 here, and the last one 4 here. ठीक है, so quickly screenshot these 4 sections and we'll go ahead with the next topic. ठीक है, so this was all about small companies and the benefits that they get and the features of such small companies. ठीक है, ज्यादा नहीं, 4 फीचर्स 4 बेनिफिट्स आप लोग करेंगे तो बहुत है. ठीक है, okay, so the next topic that we will be seeing, I think we'll see the next topic as a dormant company. Yeah, let's go and see what a dormant company means. Okay, so before we go ahead, I'll just explain what the meaning of the word dormant is. डॉर्मेंट वर्ड आपने हो सकता है पहले सुना होगा. 12th स्टैंडर्ड में देयर वाज दिस टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप, है ना. तो पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में याद करिए, एक टाइप था विच वाज अ डॉर्मेंट पार्टनर. ठीक है, डॉर्मेंट, दिस वर्ड, the definition of the word is somebody who is non participating. ठीक है, ऐसी चीज जो कि पार्टिसिपेट ना कर रही हो या जो एक्टिव ना हो. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज लाइंग देयर डॉर्मेंट, मतलब वो कुत्ता वहां पे बिना किसी हलचल के सोया हुआ है. नाउ कमिंग टू डॉर्मेंट कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013. अ डॉर्मेंट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज बीन फॉर्म्ड, जो बनाया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर. ठीक है, सो क्विकली सीयर, कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मतलब द कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो ये ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है या फॉर्म्ड है इस कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस.
सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ डोरमेंट कंपनी मीन्स, कि ये बना तो दिया गया है, ठीक है, इसके पास असेट्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी हैं, हो सकती हैं, बट इस कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पिछले कुछ सालों तक नहीं देखा गया है. सच अ कंपनी इज कॉल्ड एज एन इनएक्टिव कंपनी और अ डोरमेंट कंपनी. ठीक है, वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी? एनी कंपनी जो कि हमने कंपनीज एक्ट के अंदर बनाया है या रजिस्टर किया है, बट इट हैज नॉट gotten any significant accounting transactions in the past few years. ठीक है, कितने years हैं क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक डोरमेंट कंपनी का यही है. तो अब क्या करेंगे हम? नाउ वी कैन गो एंड मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार एंड गेट द स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी फॉर दिस XYZ कंपनी जो भी है. अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि डोरमेंट कंपनी क्यों हम मतलब करना चाहते हैं, क्यों इतना हेडेक क्यों ले किसी भी कंपनी को डोरमेंट कंपनी घोषित करने के लिए? पड़ा हुआ है, पड़ा रहने देते हैं. नहीं, डोरमेंट कंपनी अगर हम अपने कंपनी को घोषित कर देते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार उस पर साइन करके अग्री कर जाता है कि अच्छा आपकी कंपनी डोरमेंट कंपनी है, दैट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स as we saw with the earlier small companies. ठीक है, okay, so let's go in deeper and understand what it exactly means. एक दो यहाँ पे terms and terminologies हैं, such as inactive company, significant accounting transactions, etc. इनका meaning क्या है समझते हैं. So first one is inactive company. यहाँ पे दिया हुआ है inactive company. डेफिनेशन में इसका मीनिंग क्या है? इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन एंड हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है, मतलब कि एक कंपनी जो कोई भी बिजनेस पिछले कुछ सालों में नहीं कर रहा है और जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मुझे पिछले 2 सालों में नहीं दिखा है, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एन इनएक्टिव कंपनी. ठीक है, यहां पे एक और लास्ट चीज है कि सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है ये बोलने से नहीं होगा. It also has not filed financial and annual returns during the last 2 financial years. मतलब पिछले 2 साल का जो रिटर्न है या जो डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, हर कंपनी को ऐसा मैंडेटरी है कि साल के एंड में यू हैव टू फाइल योर एनुअल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा विद द टैक्स डिपार्टमेंट, विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. अगर वो उसने ऐसा नहीं किया है तो भी वो कंपनी को इनएक्टिव कंपनी मान लिया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस. सिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. ठीक है, ओके. तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, मतलब कि नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस को छोड़कर सारे ट्रांजैक्शंस को सिग्निफिकेंट माना जाएगा. तो नीचे क्या क्या दिया गया है? सबसे पहला पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रार को फीस पेमेंट किया. पेमेंट टू मेड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के जो बेसिक रूल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कुछ अगर पेमेंट किया हमने. थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, अगर कुछ शेयर्स अलॉटमेंट किया हमने. फिर
कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस को सिर्फ फुलफिल करने के लिए हमने अगर शेयर्स अलॉटमेंट किया। आखिरी, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। ऑफिस का रेंट, ऑफिस का बिजली, इंटरनेट, ये सारे खर्चों को छोड़कर, मतलब कि ये 4 एक्सपेंसेस को छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे उनको हम क्या मानेंगे? उनको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानेंगे। रजिस्ट्रार को फीस देना, एक्ट के अंदर कोई भी पेमेंट करना, शेयर अलॉटमेंट करना सिर्फ और सिर्फ एक्ट के नियमों को फुलफिल करने के लिए, एंड मेंटेनेंस करना ऑफिस का और रिकॉर्ड्स का। ये 4 चीजों को छोड़कर बाकी सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे। ठीक है, सो ये है आपका 2 जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है यहां पे, inactive company and significant accounting transactions which are mentioned in your definition itself। ठीक है, ओके, ये आप लोगों को लिखना है। अगर मान लीजिए आपको आता है ऐसा क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोरमेंट कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, तो आपको यहां से लेकर पूरा यहां तक लिखना पड़ेगा to get full marks। Many students earlier have asked me and made this mistake कि वो सिर्फ यहां तक लिखते हैं and they tell me कि सर out of 5 मुझे 3 marks मिले या 2.5 marks मिले, because आपने उतना ही लिखा है। डोरमेंट कंपनीज का डेफिनेशन यहां से लेकर पूरा पूरा यहां नीचे तक है, ना कि यहां तक। ओके, so this was all about the meaning of dormant companies। ठीक है, let's see what else do we have here। there are a few features of dormant companies which we will see quickly। the registrar on consideration shall allow the status of a dormant company to the applicant and issue a certificate in such form as may be prescribed। okay, तो डोरमेंट कंपनी बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देना पड़ता है कि ओके, माय कंपनी XYZ कंपनी इज अ डोरमेंट कंपनी एंड प्लीज अलाउ दिस कंपनी टू बी इशूड विथ अ सर्टिफिकेट, कि एक सर्टिफिकेट मुझे दे दीजिए जिससे कि ये पता चल जाए कि ये डोरमेंट कंपनी है। Fine, and you have to pay a small fees also, that is it। and the registrar shall maintain a register of dormant companies। dormant companies का अलग से एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, and that is it basically। fine, will not go ahead too much in detail। so this was all about a dormant company and how can you become a dormant company। okay, so the next, so this was all about the first 3। first one was one person company, the second one was small company, and this one was dormant company। the last topic for today will be producer companies। ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनीज क्या हैं? आप लोगों को नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि एक प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी है जो कुछ बना रही है, बट अंडर द कंपनीज एक्ट वी विल बी defining a producer companies। ठीक है, okay, so let's see what are producer companies। a producer company can be defined as a legally recognized body of farmers or agriculturers which aim to improve their standard of living and ensure a good status
of their available support, income and profitability. ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ किसी भी कंपनी जो प्रोड्यूस करती है उसके लिए नहीं है. दिस इज वाई आई सेड दैट इन द बिगिनिंग कि आपको भले ही लगेगा कि प्रोड्यूसर कंपनी है मतलब कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है तो वो प्रोड्यूसर कंपनी हो जाएगी. नो, a producer company is only such a company which is producing a few specific products and mostly are comprised of farmers and agriculturalists or agriculture people who are engaged in agriculture. This word here, agriculturalists, agriculturists means people who are engaged in agriculture. You can use this word elsewhere also. फार्मर्स को आप एग्रीकल्चरिस्ट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द कंपनीज एक्ट, यहां पे 1956 का दिया हुआ है, पर 2013 वाले एक्ट में भी प्रोड्यूसर कंपनीज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है. रूल्स रेगुलेशंस वैसे ही हैं काफी हद तक. तो वी विल सी. A producer company can be formed by 10 individuals or more. ठीक है, 10 से कम नहीं होगा. और 2 institutions or more, or by a combination of both 10 individuals and 2 institutions. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन क्या है ऐसे कंपनीज का कि 10 इंडिविजुअल्स बनाए, 10 या 10 से ज्यादा, या तो 2 इंस्टीट्यूशंस मिलके बनाए, 2 या 2 से ज्यादा, या तो एक कॉम्बिनेशन होगा ये इंडिविजुअल्स और कंपनीज का. तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी. नाउ व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच अ बिजनेस विच विल मेक देम एलिजिबल टू बी अ प्रोड्यूसर कंपनी. एक प्रोड्यूसर कंपनी बनने के लिए उनका जो काम है वो क्या क्या काम होना चाहिए जिससे कि वो प्रोड्यूसर कंपनी घोषित किए जा सकते हैं. सबसे पहले प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हाट? प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. प्रोक्योरमेंट का मीनिंग टू गेट समथिंग, टू बाय समथिंग, टू अरेंज समथिंग. बाय, गेट, परचेज, अरेंज. ठीक है, एनीथिंग एग्रीकल्चरल, एनीथिंग एग्री बेस्ड, कुछ भी एग्रीकल्चर बेस्ड चीजों को खरीदना, प्रोक्योर करना, परचेज करना, अरेंज करना. ठीक है, सबसे पहला है ये कि आपका जो बिजनेस है वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. फाइन. सो दिस इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन. ऑब्वियसली अगर आप कुछ एग्रीकल्चरल चीजें बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे. तीसरा हार्वेस्टिंग. हार्वेस्ट मतलब आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप किसी के मान लीजिए कोई एक फार्मर है जो कि चीजें उगा रहा है और आप जाके उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं. हार्वेस्ट मीन्स यू आर कटिंग इट, यू आर वो धान को काटना जो बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. तो आप सिर्फ वो काम में अगर इन्वॉल्व हैं तो भी आपका कंपनी एलिजिबल होगा. अगला है ग्रेडिंग. ग्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, ट्राई करिए. ग्रेडिंग सिंपली मीन्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको क्लासिफाई करना. क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल चाय. आप लोग सबको ही जानते हैं चाय तो नॉर्मल पत्ते से बनता है, लेकिन कोई चाय का दाम होता है 15 रुपए पर केजी, कोई चाय का दाम होता है 20 रुपए,
कोई चाय का 100 रुपए, कोई चाय का 500 होता है, 1000 लाख रुपए तक का भी चाय आता है। क्यों आता है? क्योंकि सबका क्वालिटी में फर्क होता है। उस क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं ग्रेड। चावल का भी होता है, कुछ चावल 20-26 रुपए के आते हैं, कुछ चावल 30-35 के आते हैं, कुछ 40-40-45 के आते हैं, कुछ 80-85 90 100 के भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्वालिटी या ग्रेड अलग अलग होता है। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स टू ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो अगर आपकी बिजनेस जो है, या आप लोग जो आपका एक इंस्टीट्यूशन है या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो लोग सिर्फ ग्रेडिंग का काम करता है प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, तो भी आपका बिजनेस जो है एक प्रोड्यूसर कंपनी के लिस्ट में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज पोलिंग। पोलिंग मतलब एक जगह एकजुट करना, क्योंकि सामान जो है वो बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं। किसी फार्मर से आपको 10 क्विंटल राइस मिला, किसी फार्मर से आपको 20 क्विंटल राइस मिला, किसी फार्मर से आपको 2 क्विंटल राइस मिला। तो ये सब को एकजुट करके आपको मान लीजिए ऑर्डर एक देना है, किसी आपके पास कोई एक व्यक्ति आया जो कि हु इज इन्वॉल्व इन सेलिंग, ठीक है, जो बेचने में इन्वॉल्व है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, पर्टिकुलरली राइस का। तो वो आपके पास आके बोलता है कि मुझे 80 क्विंटल राइस सप्लाई करना है। तो आप कौन है यहाँ पे? आप है पोलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो पोलिंग वाला बंदा क्या करेगा? ये 80 किलो राइस अलग अलग जगहों से लाकर एकजुट करेगा, एकजुट करके इस बंदे को बेचने में मदद करेगा। जो सेलर है वो एकजुट नहीं करता है राइस को, जो पोलिंग वाला बंदा है, पोलिंग, वो एकजुट करता है, अलग अलग सोर्सेस से लाकर एक जगह में अरेंज करता है सारा प्रोडक्ट को। तो सच अ बिजनेस विल ऑल्सो बी अ प्रोड्यूसर बिजनेस, गिवन कि आप जो कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब छोटे मोटे काम, जैसे कि पैकेजिंग हो गया, जैसे कि कुछ एडवर्टाइजिंग हो गया, इस तरीके के जो छोटे मोटे काम होते हैं। एडवर्टाइजिंग तो अलग से यहाँ मार्केटिंग में दिया हुआ है, बट हैंडलिंग सिंपली मीन्स उसको ट्रांसपोर्ट करना, जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको उतारना चढ़ाना, लेबर में इन्वॉल्व होना कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, या आप क्या बोल सकते हैं उसको पैकेजिंग कर रहे हैं। जैसे चाय, चाय तो पत्ते में आता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है, उसको फिर टेस्ट, उसमें फ्लेवरिंग ऐड करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं, फिर पैकेजिंग भी आप कर रहे हैं, तो वो आपका हैंडलिंग में पड़ जाता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। बहुत इजी है, आप उसको बेचने में मदद कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, अलग अलग जाके अलग अलग जगह पे जाकर उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, मार्केट में, बाजार में एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके के काम अगर आप कर रहे हैं तो भी आप प्रोड्यूसर कंपनी कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आप मार्केटिंग कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेलिंग। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, साधारण है, ये तो डायरेक्ट है। और आखिरी है एक्सपोर्ट। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो भी इंडिया से, तो इंडिया में जनरली बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होता एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, बट हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में ही आप कहलाएंगे, मतलब आप प्रोड्यूसर कंपनी एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी। फाइन, लेट्स क्विकली सी a few more things.
ओके, रजिस्ट्रेशन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ, रजिस्ट्रेशन देखेंगे और बेनिफिट्स देखेंगे। ओके, सो आई होप दैट आप इसका नोट्स ज़रूर ले लेंगे, मैंने यहाँ पे मैं बोलना भूल गया था, बट हाँ, डू टेक नोट ऑफ दिस पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फाइन, ओके, सो registration process. Now, registration process of a producer company is very similar to a private company. ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, डिजिटल सिग्नेचर एंड DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोनों के बारे में हम लोग अभी मैं नहीं डील करूँगा, ये दोनों ही आपके आगे आएंगे तो उस समय हम लोग डील करेंगे। एक छोटा सा बता देता हूँ कि ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं देवांजन मुखर्जी हूँ एंड मैं आपको ये क्लास अभी ले रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहेंगे कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि आई एम देवांजन मुखर्जी हु इज टेकिंग दिस क्लास, एम आई द रियल पर्सन, कि मैं असली में वो हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं। सो सच अ सिग्नेचर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डिजिटल प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन। एंड ये DIN भी सिमिलर है, ये डायरेक्टर्स को दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो डायरेक्टर है वो कुछ भी डॉक्यूमेंट पे साइन करता है जो कि वर्चुअली ट्रांजैक्ट हो रहा है, मतलब ऑनलाइन भेजा जा रहा है, वो उसी ने किया है या फॉर्जरी है, क्योंकि ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट भेजने में फॉर्जरी आसानी से की जा सकती है। तो इस कारण से ये दो चीज़ें यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले DIN ऑब्टेन करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। So the first step is to get the digital signature and DIN. The second one is to file an application with the registrar of companies. Third one is name must end with producer limited companies. तो ये लोग जो नाम सजेस्ट करेंगे, ये नाम आपका एंड होना चाहिए प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनीज से। फाइन, उसके बाद क्या होगा, सो दिस वाज द थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन इज टू बी फाइल्ड। यहां पे ये एप्लीकेशन था एक बेसिक नेम रिजर्व करने का, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन होगा वो इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। इसके बाद अगर रजिस्ट्रार आपका सेटिस्फाई हो गया, वंस द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेशन एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, ही विल अप्रूव द नेम एंड इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप डिजिटल सिग्नेचर और DIN लेना, दूसरा नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन देना रजिस्ट्रार को, तीसरा प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी हो आपके नाम में, ये चीज को ध्यान रखना, एंड उसके बाद चौथा इनकॉर्पोरेशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करना, एंड पांचवा, अगर मतलब आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है, पर इसके बाद एक और स्टेप यह है कि आपको अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फाइन, सो दिस इज बेसिकली हाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी हैपेंस, विच इज वेरी सिमिलर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक फर्क है,
उसमें ये चीज़ नहीं होता है, प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी का नाम नहीं आता है. सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, और if you want to pause it and write it, whatever. So this should be in your notes. Moving on to the last topic of today, benefits. Why are we taking all this headache of becoming a producer company? Obviously कुछ तो फायदा होगा ही. क्या फायदा है वो देखते हैं. तो सबसे पहला फायदा, द मेंबर्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी इनिशियली विल रिसीव द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस पूल्ड एंड सप्लाइड एज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्टर्स. दिस अमाउंट विल बी गिवन आउट लेटर इन द फॉर्म ऑफ कैश काइंड इक्विटी शेयर्स. ठीक है, मीनिंग कि अगर मान लीजिए 100 पीपल हैं, 100 फार्मर्स हैं एक्चुअली, जो कि मिलकर एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो ये 100 फार्मर्स क्या देंगे? 100 फार्मर्स अपने अपने जो सामान वो उन्होंने बनाया है, उगाया है, वो एक साथ एक जगह पे लाकर बेचने का कोशिश करेंगे. तो उन्होंने मान लीजिए बेच दिया, तो बेच देने के बाद उनको क्या मिलेगा? जितना भी वैल्यू है, ये जो सामान उन्होंने बेचा उसका वैल्यू जितना भी है वो बाद में उनको कैश में, काइंड में या इक्विटी शेयर्स के हिसाब में उनको मिल जाएगा इस कंपनी में. ठीक है, उसके बाद मेंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी विल बी एंटाइटल्ड टू गेट बोनस शेयर्स. इनको बोनस शेयर्स भी मिलेगा जो मेंबर्स हैं. बोनस शेयर्स क्या है? बोनस शेयर्स उन लोगों को मिलते हैं जो कि शुरुआत से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और जो उस कंपनी में कुछ शेयर्स होल्ड करते हैं पहले से, तो उस रेशियो में उनको बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं. मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास कंपनी ने बोला कि 10:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे और मेरे पास 10 शेयर्स हैं, तो मुझे एक बोनस शेयर मिलेगा. तो ये होता है बोनस शेयर. तो उनको बोनस शेयर भी मिलेगा. ठीक है, और उनको सरप्लस भी मिलेगा. अगर मान लीजिए कुछ इस कंपनी को कुछ मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो सरप्लस भी ये मेंबर्स को मिलेगा अगर वो प्रोड्यूसर कंपनीज के मतलब मेंबर हैं. ठीक है, यहाँ पैट्रोनेज बोनस की उतनी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. पैट्रोनेज बोनस सिंपली मीन्स उनका जितना शेयर है उस कंपनी में उसके हिसाब से उनको बोनस मिलेगा. तो अगर मेरे पास, जैसे मैंने बोला, 10 शेयर है, तो 10 शेयर के हिसाब से एक परसेंटेज निकाल दिया जाएगा एंड 10 शेयर वाले को उतना परसेंटेज मिलेगा अकॉर्डिंग टू हाउ मच he has in this particular कंपनी. या तो ये एक तरीका हो सकता है, या तो दूसरा एक तरीका होता है पैट्रोनेज बोनस का कि उसने जितना कंट्रीब्यूट किया. मान लीजिए मैंने 10 क्विंटल राइस कंट्रीब्यूट किया, तो मेरा जो सरप्लस होगा वो उस 10 क्विंटल राइस के हिसाब से मुझे मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली पैट्रोनेज बोनस सिस्टम. सो ये आपके हैं कुछ बेनिफिट्स. यहाँ पे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं, बट गवर्नमेंट बेनिफिट्स हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. ये टैक्स का क्लास तो है नहीं, तो इस कारण से वो हम लोग यहाँ डिस्कस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली इट. अच्छा, यहाँ पे टैक्स के मैंने अभी जस्ट बोला कि टैक्स का नहीं है, लेकिन एक बार क्विकली देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझ लीजिए, एग्रीकल्चरल इनकम को इंडिया में टैक्स फ्री माना जाता है. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इट इज गिवन, इट इज 100% टैक्स फ्री. यहाँ पे सिर्फ टी के बारे में बोला गया है, लेकिन इन जनरल ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, आप लोग बाद में पढ़ेंगे. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स.
मतलब अगर कोई एग्रीकल्चर के थ्रू कमाई कर रहा है तो उसको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो इस कारण से एक प्रोड्यूसर कंपनी को भी वही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नो नीड टू राइट ऑल्सो, यू कैन जस्ट राइट दिस वन लाइन and maybe this one line does not specify any special tax which is essentially benefits and again by its definition. ये कुछ लाइन आप लोग लिख सकते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिस फर्स्ट लाइन, द इनकम टैक्स एक्ट 1965 अंडर सेक्शन 10(1) exempts the agricultural income and this particular 3 lines in the next paragraph. That is it. So this was all about your producer companies. I will end this class at this topic today. I hope that you have followed and you will take the notes of this particular 4-5 things that we have discussed in the end, and you also will take notes of the earlier section which was the types of companies or classification of companies on 4 different parameters. We will continue ahead with the next topic day after tomorrow. Tomorrow we will have a class for a separate topic. Fine. So that is it for today.